Hi everybody, welcome back to the vocabulary series that we have been doing. So today we will be learning some interesting words starting with letter N. We have already completed words till letter M. So if you have missed any of those videos, then you can watch it from the link that I've included in the description section of this video and even from the top right corner of your screen. Now before we continue further, let me tell you that watch the video till the end because as I say, every word is important. Yeah. And if you like this series, then please hit the like button, share it with your friends, and do let me know if you have any feedback with respect to this series or this particular video in the comment section below. Now, before wasting much of our time, let's move forward with the first word for today, that is nepotism. Nepotism is a noun, okay? It means, favoritism, inequity or patronage. तो in simple words if I explain, जब हम दो लोगों में किसी एक को चूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज वो हमारा फैमिली मेम्बर है या किसी दूसरे रीजंस की वजह से हमसे एसोसिएटेड है, मे बी हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन है. सो फॉर एग्जाम्पल there are two employees, right, and one needs to be promoted. They have equal skill set, but just because one of them is our family member या हमारा friend है, ठीक है, किसी वजह से connected है, associated है हमसे, तो हमने उसको promote कर दिया. ठीक है, that is referred as favoritism or nepotism. Okay, let's see the एग्जाम्पल. तो ये जो नेपोटिज्म है ये हम काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट यो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द प्रिवलेंस ऑफ नेपोटिज्म इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज ऑफन लेड टू टैलेंटेड इंडिविजुअल्स बीइंग ओवरलुक्ड, मीन्स इन फेवर ऑफ दोज विद इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस. तो ये हमने कई बार देखा है पॉलिटिक्स में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जिसका कोई कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन इन द सेंस किसी पावरफुल या फिर बहुत ही फेम और बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ उनको उस इंडस्ट्री में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा फेवरेटिज्म मिल जाता है एंड दे रीच अ वेल डिफाइंड पोजीशंस. बट जिनके पास वैसे कनेक्शंस नहीं हैं, दो वो टैलेंटेड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रीच दैट पोजीशन, या सो वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं. So that is the effect of nepotism. Now, I hope you get this word. Moving on to the second word, that is Nestle. It is not Nestle. Nestle is a brand of chocolate. We all know that. But here I am talking about the verb that is nestle. Nestle means to lie or press closely to someone, to settle or snuggle comfortably. जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी मम्मी अपने पेरेंट्स से कितना क्लोज होकर चिपक के कंफर्टेबली लाए हो जाते, तब उनको नींद आ जाती है. सो बीइंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, lying or press close to someone is referred as nestle. Let's see the example. ये बहुत सारे पेट्स के उसमें भी केस में भी हम देखते हैं. The puppy nestles against its owner seeking affection and closeness, right? When you hug someone, when you lie comfortably, और उसको क्या बोलते हैं, press closely to someone, that can be termed as nestle. Like मैंने इस पिक्चर पे भी लगाया हुआ है, सो यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम देयर. मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ड, दिस नेटल. नेटल इज़ अ वर्ब विच मीन्स टू अनॉय, इरिटेट, मतलब अनॉय हो जाना, इरिटेट होना, एंग्री होना. दैट इज टर्म्ड एज नेटल एंड वन वर्ड हियर इज वेक्स. So let's see the example for nettle. The constant interruptions during the meeting nettled the presenter. Very real life example. जब आप कभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात अगर नहीं करें, हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं और बीच बीच में वो टोके हमें, राइट, इंटरप्ट करे, तो हम कितना एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, राइट. एंड दैट इंटरप्शंस विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन इज रेफर्ड एज नेटल्ड. ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन होना, वो एंग्री होना, थोड़ा सा अनॉय होना, दैट इज टर्म्ड एज नेटल. Moving on to the fourth word for today, that is nexus. Nexus is a noun which means connection, link या central या focal point. ठीक है, कोई central point हो या कोई connection हो, that is termed as nexus. Let's see the example. Examples अच्छे से समझ में आएगा. In the world of technology, smartphone has become the nexus of communication के लिए भी, entertainment के लिए भी, productivity के लिए भी आजकल smartphone is very useful. It is the nexus, it is the central point of communication or entertainment or productivity. तो यहाँ पे central point के उसमें context में nexus यूज़ किया गया है.
इसी को हम कनेक्शन और लिंक के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ किया गया है। Moving on to the fifth word for today, that is nihilism. Nihilism is a noun. It means belief in nothing, denial of all reality, of all objective truth. तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो मतलब सोसाइटल जो स्टीरियोटाइप टिपिकल थॉट्स होते हैं, वैल्यूज़, बिलीव्स होते हैं, उन पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। दे इग्नोर ऑल ऑफ दैट एंड दे से कि उनका कुछ किसी भी चीज़ में बिलीफ नहीं होता है ना। दैट इज़ निहिलिज्म. लेट्स सी द एग्जाम्पल. The artist's work reflected a sense of nihilism, challenging conventional notions of beauty and purpose. तो जो conventional notions और beliefs हैं beauty को लेकर, उसके खिलाफ मतलब है ना, उससे उठ के कुछ वो आर्ट बनाया गया which was reflecting a sense of nihilism, means denying all the objectivity or the truths or the beliefs which exist in a particular society. तो यहाँ पे ब्यूटी को लेके है, पर्पस को लेके है कि उनके जो नोशंस बने हुए हैं, कन्वेंशनल नोशंस रिगार्डिंग ब्यूटी एंड ऑल, तो उसको हम हटा रहे, उसको हम नहीं मानते हैं, हम ब्यूटी को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं. सो वो चीज़ उस आर्ट में दिख रही थी. ओके, moving on to the sixth word is nocturnal. Nocturnal is an adjective. It's a very common word. Most of you would be knowing it. It means belonging to the night, happening, done और active by night. तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या कुछ जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट, सुबह से ज़्यादा, तो दे आर रिफर्ड एज नॉक्टर्नल. ओके, सो नॉक्टर्नल रिलेट्स टू नाइट, you know, darkness, night. So let's see the example. Night shift workers often struggle with their sleep patterns due to their nocturnal schedules, मतलब late night schedules. उसकी वजह से उनको sleep patterns में struggle होती है, दिक्कतें होती हैं. Like examples में देखें तो bat, owl, these are nocturnal creatures. Moving on to the seventh word for today, that is nonage. Nonage is a noun which means immaturity, legal infancy और minority. तो जब आप adolescent stage में होते हो, teenage stage में होते हो, minor होते हो, that is termed as nonage. तो इसका देखो जो suffix है या suffix age है, तो age मतलब आपकी उम्र और non तो मतलब minority, ठीक है. तो इस तरीके से समझ सकते हैं नॉनेज का मतलब कि माइनॉरिटी है, लीगल इन्फेंट है, टीनेज, एडोलेसेंट और इमेच्योर टाइप के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यूथ्स होते हैं, दे आर रिफर्ड एज नॉनेज. लेट्स सी द एग्जांपल. द लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइजेज सर्टेन राइट्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट येट रीच्ड द एज ऑफ नॉनेज. एज ऑफ माइनॉरिटी क्रॉस नहीं किया जिन्होंने, उनके लिए अलग लीगल सिस्टम है, ठीक है, सर्टेन राइट्स हैं, प्रोटेक्शंस हैं उनके लिए. दैट इज द एग्जाम्पल है. Moving on to the eighth word, that is non-entity. Non-entity is a noun which means a person or thing of no importance, a thing which does not exist. तो नॉन एंटिटी हम ऐसा कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 बट एक वहाँ पे ऐसा इंसान है जो इग्नोर्ड, एकदम कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा है, नो इम्पॉर्टेंस, एज इफ कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट ही कैन बी टर्म्ड एज नॉन एंटिटी, राइट. एंड सिमिलर इज इन केस ऑफ थिंग्स, लाइक एक सुपर स्टोर में आप जाओ और वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हों बट एक प्रोडक्ट रखा है जो कोई उठाता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग टाइप का प्रोडक्ट हो जाता है वो, दैट इज़ रेफर्ड एज नॉन एंटिटी, ठीक है. थिंग ऑफ पर्सन और थिंग ऑफ नो इम्पॉर्टेंस विच डज नॉट एग्जिस्ट. Let's see the example. The company's new product turned out to be complete non-entity, failing to generate any interest among customers. ठीक है, नॉन एंटिटी मतलब एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, कंपनी ने लॉन्च किया और वो किसी भी यूज़र को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, किसी ने उसको बाय नहीं किया, तो वो एक तरीके से नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही हो गया, राइट, कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस तरीके का. सो दैट्स व्हाई दैट प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज नॉन एंटिटी. आई होप यू गेट दिस. इफ यू हैव एनी डाउट्स feel free to comment down. Now ninth word for today is nonplus. Nonplus is a verb which means to perplex completely. Perplex का मतलब हमने काफ़ी जगह पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद है तो perplex का मतलब होता है confuse, ठीक है. make uncertain what to say or do. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में मैं लेंसकार्ट में एक चश्मा देखने गई, अब वहाँ पे इतने सारे चश्मे, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी गेट मोर चॉइसेस
तब हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लेना है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, बहुत यू फील कि क्या करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ रिफर्ड एज नॉन प्लस. तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ, दैट इज टर्म्ड एज नॉन प्लस. Let's see the meaning. Example: the ambiguous instructions on the package left the customer nonplussed, unsure of how to assemble the product. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं, ठीक है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल किड्स के जो बहुत सारे टॉयज़ आते हैं वो अनअसेंबल्ड होते हैं. वो आप ख़रीदो, उसके बाद उसमें सब स्क्रू वगैरह वो देख के रखते हैं एंड दे गिव इंस्ट्रक्शन इन द बॉक्स, और उसको देख देख के आप उस तरीके से असेंबल कर दो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज लगाई हुई है, इट्स ऑफ एन एयरप्लेन. तो स्क्रूज़ वगैरह लगे हैं ना, वो असेंबल किया हुआ है, ये अनअसेंबल्ड आता है. तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस दिए और एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लीड मी इनटू अ कंफ्यूज्ड स्टेट. कौन सा स्क्रू किधर लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सा पार्ट किधर फिक्स होगा, दैट्स वाई आई एम कंफ्यूज नाउ. So that confused state is referred as non-plus. Okay, I hope you get this. Moving on to the 10th word for today, जो मुझे बहुत ही यूनिक लगा, right? Nosegay. Nosegay is a noun, और इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है इसको. It means a bunch of fragrant flowers, a bouquet. मतलब I have never thought कि bouquet को इस तरीके का नाम भी हो सकता है, nosegay. मतलब I was completely surprised कि ये कैसा वर्ड है. So I wanted you also to know this, that nosegay is a noun which means bouquet, fragrant flowers. Let's see the example. The sweet fragrance of the nosegay, which means bouquet, filled the room, creating a pleasant atmosphere for the guest. Right? Very simple example. और ये word आप हमेशा मतलब कभी किसी को बताना, बहुत ही surprising word है ये. मतलब bouquet को अपन nosegay बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं था. So I hope you have learned something new today, which you can share it with your friends. Now, 11th word for today is nostrum. Nostrum is a noun which means any secret, quack or patent medicine, any favorite remedy or scheme. ठीक है, तो पेटेंटेड मेडिसिन होती हैं, कोई सीक्रेट होता है, कोई रेमेडी होती है फेवरेट कि भाई ये बीमारी हुई है तो ये कर लो, ये सही हो जाएगा. उसका कोई साइंटिफिक फैक्चुअल डिटेल्स नहीं होते हैं, फैक्चुअल एविडेंसेस नहीं होते हैं, कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बस जस्ट बिकॉज वो चल रही है सही से, वो अपन सबको दे देते हैं, है ना. तो दैट इज रिफर्ड एज नॉस्ट्रम. Let's see the example. The government issued a warning about a potentially dangerous nostrum being sold online without proper regulation or approval. तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं बहुत जो पेटेंटेड हैं और सीक्रेटिव हैं, एंड दे आर सोल्ड ऑनलाइन. तो उसका कोई अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, रेगुलेशन के बिना ही वो बिक रही हैं. सो गवर्नमेंट इशूड अ वार्निंग. सो इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाले ताकि आपको समझ में आए कि वो वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, एंड आई होप ये आपको सच में हेल्प कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द 12th वर्ड इज नॉक्सियस. नॉक्सियस इज एडजेक्टिव विच मीन्स पॉइजनस, समथिंग विच इज हार्मफुल, अनहोलसम है कोई चीज़, दैट इज रिफर्ड एज नॉक्सियस. लेट्स सी द मीनिंग. एग्जाम्पल: द फैक्ट्री रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ नॉक्शियस फ्यूम्स. नॉक्शियस मतलब poisonous fumes या harmful fumes into the air, causing widespread respiratory problems in the surrounding city. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है. इससे आपको नॉक्शियस की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे यूज़, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, राइट. मूविंग ऑन टू द 13th वर्ड, दैट इज न्यूबाइल. Nubile is an adjective which means marriageable, sexually mature, sexually attractive. तो जब बहुत सारे लोगों के केस में, हम लोग के केस में होता है, इंडियन कल्चर में ज़्यादा ही है ये, एक सर्टेन एज में पहुंचने के बाद वी आर कंसीडर्ड कि अब इसकी शादी करा दो. नाउ ये बेसिकली फीमेल्स के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है. तो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है कि इफ़ शी हैज़ रीच 21 एज, 24 एज, शी इज़ वेरी मैच्योर, शी इज़ मैरिजेबल, शादी लायक हो गई है लड़की, है ना. दैट वर्ड इज़ रिफर्ड एज न्यूबाइल. लेट्स सी द मीनिंग. एग्जाम्पल, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे. ओके, इन सम कल्चर्स गर्ल्स आर कंसीडर्ड न्यूबाइल वंस दे रीच अ सर्टेन एज, जो मैं आपको अभी बता रही थी, ठीक है. न्यूबाइल मीन्स मैरिजेबल स्टेट, मैच्योर, सेक्शुअली मैच्योर्ड. तो वो उस तरीके से समझ में आने मतलब समझते हैं लोग कि अगर ये एज आ गई है, सो नाउ दे आर मैच्योर, दे आर मैरिजेबल.
Moving on to the 14th word, that is nugatory. Nugatory is an adjective which means useless, futile, ineffectual. मतलब कोई चीज़ कोई काम की नहीं है अब, न्यूगेटरी है ना, यूजलेस है, इनफेक्चुअल है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमिस मेड बाय द पॉलिटिशियन टर्नड आउट टू बी न्यूगेटरी, मीन एज नन ऑफ देम वर फुलफिल्ड. इतने बड़े बड़े प्रोमिस होते हैं ना व्हेन इलेक्शंस आर अबाउट टू हैपन, तो वो प्रोमिस जब फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं तो किस बात का इफेक्चुअल हुए, इनफेक्चुअल हुए, है ना, कोई मतलब के नहीं, फ्यूटाइल हैं, यूजलेस हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट तो हुए नहीं और हमने वोट दे दिया. सो दैट इज रिफर्ड एज न्यूगेटरी. मूविंग ऑन टू द 15th वर्ड दैट आई लाइक द बिट, है ना, थोड़ा अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि थोड़ा बहुत कलेक्शन मैं भी करती हूँ कॉइन्स का. सो न्यूमिस्मैटिस्ट. न्यूमिस्मैटिस्ट इज अ नाउन विच मीन्स वन हु हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स और मेडल्स. मेरे पास तो इक्के दुक्के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो काफ़ी सारी करेंसीज के बारे में बहुत जानते हैं. यू नो, न्यूमिस्मैटिस्ट आर रिफर टू दोज पर्सन हु नो लॉट अबाउट करेंसीज. ठीक है, और उनके पास बहुत सारा कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज का, कॉइन्स का, मेडल्स का. सो दे आर रिफर्ड एज न्यूमिस्मैटिस्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी जॉइंड अ न्यूमिस्मैटिक्स क्लब to connect with other passionate numismatists and exchange coins. तो ऐसे क्लब्स भी होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं. सो शी जॉइन दैट क्लब. तो ये एग्जाम्पल है जस्ट, है ना, टू एक्सप्लेन यू बिट ईजीली. सो दिस इज़ वॉट न्यूमिस्मैटिस मीन्स. तो अगर आपका भी ये इंटरेस्ट है, कॉइन्स का कलेक्शन आप बहुत करते हो, आपको बहुत नॉलेज है इस करेंसीज की एंड ऑल दैट, देन यू आर रिफर्ड एज न्यूमिस्मैटिस. द वर्ड इज़ फॉर यू. ओके, so I hope you get these words. Now today assignment for the day, you have to research on these 5 words and let me know their meanings. 16th word, which is niggardly, adjective. 17th word is niggle, which means verb. 18th word is noisome, which is adjective. 19th is nostalgia, very common word, it's noun. And 20th word is nuptial. शायद इसका pronunciation थोड़ा अलग है, so check it once, which is an adjective. I guess nuptial hai, nuptial. So I hope you will research them and let me know in the comment section below. Okay, so see you in the next video. Thank you for watching, thank you for being here. Please like, share and subscribe my channel, and see you in the next video. Till then, happy learning, stay safe and take care.